Welcome to the world of exploration. Welcome to the world of learning. Let's start exploring. Let's start learning. This is your very own educator, teacher, philosopher, guide, mentor, preacher, uh, guru, one and all. And this is the one-stop destination that's English Gurukul, Wisdom Era, the edifice of education or the Odyssey of education, right? Where learning happens. So, what are we waiting for? Let's get started. Let's get ahead. And as you can see you know, at the back, it's India. It's the map of India. And along with it, what is it? There are two wings, which actually signifies that we are gonna soar higher and higher and higher, and we're gonna achieve each and every whatever setback, whatever obstacle or hindrance comes on our path, we're gonna fight it out and we're gonna be the leaders of tomorrow, right? So these two wings symbolize that in my perspective, in my view. And apart from that, we as India were and are still and will always be, you know, in the pages of history we have been known as the golden bird, right? And we will always be remembered like that. And now it's time for us, our generation, for Gen Zs to make India a golden bird again. Now it's high time for us in 21st century apart from learning 21st century skills, we need to adapt and we need to adapt to the policies of how to make India, our nation, a developed nation, a successful nation, not only in terms of, economy, not only in terms of finance, but also in terms of morals, in terms of values, in terms of, in terms like in a lot of areas, right? In terms of ethics, in terms of, you know, how you should conduct yourself, in terms of behavior, you know, how you should interact with others. And yeah, how one should be ready to learn and should be keen on learning and should learn from everyone, everyone, no matter what. And you should not think anyone to be superior or inferior in any way, right? And develop your own individuality. That's what my take, that's what my opinion is all about and my take is all about. All right, so let's dive deep into it and let's start with what actually I have come up with. So in today's session, I've prepared a PPT, so we're gonna be discussing about it, right? So let's start with your secret, Yoshi, ma'am. Your very own educator, teacher, philosopher, guide, mentor, preacher, teacher, guru, one and all, right? Radhe Radhe, Jai Shri Krishna, Namaste. Let's start. Let's begin. ठीक है? शुभ काम में तेरी कैसी? All right. So yeah. So we're gonna be looking and we're gonna be starting off with the cartography of Dharma. So as you can see, the cartography of Dharma, that's what we are referring to. So we are gonna be mapping it out, right? The chronology. So the chronology, how it goes around and how it goes about an intellectual evolution of Hindu sacred texts. So, how Hindu sacred texts actually evolved and when did they take birth? So, actually, in reality, none of us know because it is so rich. You won't believe how rich India is. Still, it is very rich after being, uh, you know after having been looted by Dutch,
what Dutch did to us, how they dished us, and how Britishers, how Mughals, the history of everyone who actually, sort of colonized us and who wanted to, uh, you know, make us, you know, feel as if they have come for some kind of a business, but they had their ulterior motives with them. So we're gonna be discussing about it and how rich, how beautiful our Indian tradition is, right? And I won't be talking about over here that why am I speaking in English? Because, see, languages are beautiful. And Sanskrit is the mother of all languages, literally all languages. I would love to learn Sanskrit. It is beautiful. It is magnificent. But over here, and I know a bit of it. So, yeah, but the point over here is that, English is also a very pretty and beautiful language. So that's why I would be explaining in English, and I would simultaneously mix, like I would amalgamate and make and stir it and make a combination out of like English and Hindi. So that would be English. So I would be making use of English. All right. Now let's get started. All right. So it's from 1500 BCE to 10,000, 1,000. Wait. 1,000, sorry, 1,000. So 1,500 to 1000 CE. Yeah, it goes backwards. Yeah. While talking, I just forgot what was the main motive. Yeah, sorry. I'm so sorry. Yeah, 1500 BCE, that is before Christ era, right? Before Christ evolution. So, where was I? Yeah, here. I hope you're able to see my second slide as well. So then we come on to the route map for territories of thought. So this is the route map. Now, how are we going to cross? That's the thing. So when engineers you see, not today, I'll not be focusing and I'll not be talking about today's architects or today's engineers, but I'm gonna be talking about architects and engineers that were actually making use of science, you know. When I'm talking about science, I'm not talking about today's science. I'm not talking in terms of science that is there, that exists today. I'm talking about science that existed, far, 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 that we left off, right? Uh, we are talking about the ancient, we are talking about the past, real past, the passage of past that is there. We're talking about it, right? So we are going to be dealing with the four territories of thought: first, second, third, and fourth. First one is the foundation. Obviously, you have to lay out a foundation for anything to start. So you have to have a foundation. So when you even now it's but it's a very simple thing nowadays to build a home or to build a house or to build a mall or to build a shop. You just lay out a foundation. You'll just have a similar kind of, you know, uh, everybody is copying and imitating and wants an urban style of a lifestyle. It wasn't a thing. Earlier architects, earlier scientists, earlier engineers used to ponder over, and then they used to implement, you know, thinking about the nature, thinking about the Mother Earth, thinking about our Mother Earth. हमने ऐसे ही नहीं हमारी धरती को, हमारे planet
अर्थ को माँ कहा है। हमने माँ किसी वजह से, बहुत ही ठोस वजह से उसको, उसको नहीं, उन्हें, सॉरी, उन्हें माँ कहा है। और हम कहेंगे कि so we are gonna be talking about the foundation, right? So that is the Mother Earth. So respect, pay reverence to your Mother Earth. Pay respect to soil, pay respect to land, pay respect to sky, pay respect to the species all around, whether it be birds, dog, cats, any animal. Pay respect. Please, you are an Indian, and your values, your customs, your traditions, your spices, your gold, your diamond, your everything. These were the things that made you, uh, separate from other people. Please don't lose your identity. So the foundation would be, well, from 1500 to 900 BCE. So herein we are going to be talking about ritual and revelation, and we are going to be dealing with the Vedas. Clear? Then we have the wilderness. So secondly, we are going to be talking and dealing with 700 to 300 BCE. So we are going to be talking about internalization and philosophy, right? Uh, and Aryanakas and Upanishads, right? That's what we are going to touch upon. Clear? Then we have the codification. So this is basically that this timeline or this chronology I have made, this route map I have carved out only especially because of you people out there, in such a way so that you are able to connect, so that we, as you know, because Gen Zs find it difficult to connect. Some of the Gen Zs, even I am a Gen Z, but you have to be able to understand what what am I talking about, right? So in order for you to relate it in a better manner, I have included this: the foundation, the wildness, the codification. Like, you have the codes nowadays, and you are so dependent on your codes, which actually are derived from Sanskrit again, so which you should be proud of. Then we talk about social law and authority. So this is from third century, like third century BCE to 8th century BCE. We have social law and authority, and we have dharma sastras, right? And then we have, what do we have? Then at the fourth stage is all about the synthesis and devotion. So here we have second century BCE till 10th century till 10th century CE, right? Uh, we have mass narrative and spiritual harmony. So we do have mass narrative. So a lot of narratives have been popping up, right? And we do have spiritual harmony as well. We have Puranas and the Gita that are there in the synthesis and devotion part. So it starts from 1500 BCE and it goes on till 1000 CE. There's a difference between BCE and CE, right? All right, then we have. All right, then we have the foundational boundary. So we have sacred literature, right? So we have Shruti and we have Smriti, right? Shruti is basically Shruti, or some people refer to it like, you have names like Shruti or Smriti, right? So
they have come from here. So Shruti, that is revelation, and Smriti, that is tradition, right? So Shruti, when we are talking about revelation, it's a translation that which is heard. So it is heard, right? Obviously, because it's a revelation about something, right? We don't know about that yet, but it is a revelation, so we have come to know about it. So that which is heard, that which is heard. So authority, supreme, unquestionable, divine origin, that is Apuruseya, right? Apuruseya. So supreme, unquestionable, divine origin. Then we have origin revealed to the seven ancient seers, that is rishis, right? Who saw the truth, who basically they were able to see, obviously, because they were rishis, they were the seers, they could see, they could, even if somebody is lying, they could make it out that it's not, somebody's lying, somebody's not telling the truth, so somebody is hiding something, so they could make it out, right? Then we have primary texts, like for example, we have the Ved, right? We have the Ved. So when we are talking about the Veda, or when we are talking about the Ved in Hindi, we call it Ved. A is an extra thing, right? So it's not Rama, it's Ram in Hindi. It's not, it's not Veda, it's like Ved, right? So we have Rig, Yajur, Sama, Atharva, right? These are the four Vedas. Four Vedas, right? Rig Veda, Yajurveda, Samaveda, Atharvaveda. Then we have Smriti, which is tradition, right? So translation would be that which is remembered. So that was heard, Smriti. Smriti is tradition, which is remembered. Shruti was revelation. Shruti is revelation. Smriti is tradition, which is remembered. So tradition is always remembered. स्मृति स्मृति मतलब जैसे कि दिमाग में यार स्मृति स्मृति हुई उसकी स्मृति याददाश्त, ठीक है, उससे याद कर. Then we have authority, secondary human made literature, right? Then we have origin, so authority is inferred from Shruti. So Shruti se aaya authority, codified to preserve lost Vedic knowledge. So इसको codify करा गया, जैसे अभी भी आपके coding होती है, AI है, artificial intelligence है, right? So we do have the system of artificial intelligence. We do have IP. We do have C++. We do have Python. We do have different concepts which are emerging on a daily basis. We do have, I don't know what all AI systems we do have, but we do have so many apps nowadays that can answer your queries. So I'm not I'm not a techno savvy person at all, but yeah, there are. I've heard about it. So like nowadays, and you do have all that stuff in a similar fashion. They also, wanted to preserve it, so that this knowledge doesn't get lost. And in order for in order to preserve that particular knowledge, they actually codified it. जैसे कि आजकल होता है, जैसे कि I'll just give an example. So, for example, I am I love each and every subject, but I don't like maths to that extent, right? Although, if I know if I would have done, a particular thing in maths, that is Vedic maths, I would definitely would have fallen in love with maths, and I would have been I would have been marvelous at it because you know, I could have done that. Like I really could have.
But because that knowledge was kind of codified and was only given to a specific set of people, and even in, computer coding is given, like only some specific set of engineers know about it, or nowadays children have also started, learning about it. That's a different thing altogether, but otherwise it is codified in such a way, or Sanskrit is the best example, was codified. Uh, it's a codified language that, only intellectuals, only people who have a certain level can achieve that, can actually uh, unlock and then see what gold mines are there inside it, inside the words. You will see automatically words opening like a flower, blooming and blossoming like a flower. I'm just a very good poet. I have just like, I always come up with something or the other. I'm just fabulous. मैं अपनी तारीफ बहुत कर रही हूँ यार, स्पेशली ऑनलाइन मैं अपनी तारीफ बहुत करती हूँ. All right, coming back to the topic. So, primary text, but I am very good at other subjects, all these subjects, right? So, primary text, then we have Puranas, we have epics, we have Mahabharata, we have Ramayana, we have Dharma Sastras. So, primary texts were Puranas, हमारे थे, ठीक है, हमारे epics थे, ठीक है, जो कि long narrative poems होती हैं, ठीक है, ग्रीक और लैटिन में भी थे, ठीक है. लेकिन मैं आप लोगों से एक विषय में अच्छे से बात करना चाहती हूँ, वो विषय है कि मैं एज अ अध्यापक, I, being a teacher, have always noticed this fact very well. Although I am an English teacher, but that how, children are very much inclined towards reading Greek literature, or Latin or Roman. Although Latin, I would say, is a great language to learn, but uh, इतना ज्यादा इंक्लिनेशन अगर हमारे संस्कृत की तरफ हो तो वो बहुत अच्छा, वो बहुत बेहतरीन बात होगी. देन वी हैव प्राइमरी टेक्स्ट, या सो फिर हमारी महाभारत आता है, रामायण आता है, धर्म शास्त्र आते हैं, ठीक है. फिर हम आते हैं then we come on to the architecture of Shruti, that is from 1500 BCE to 900 BCE, ठीक है. हमारा है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जिसके बारे में मैंने आपको, जिसके विषय में मैंने आपसे पहले भी चर्चा करी थी, ठीक है. So we have the oldest one, which ranges from 1500 to 1200 BCE. So we have hymns of mythology, right? Under Yajurved, we have instructions. So therein we had hymns of mythology. Clear? In Rigved. Hymns, that means something that is that you are praising, right? So for example, if I write something for in praise, or like I'm appreciating something, some aspect of your your physical appearance or your intellectual, uh, uh, or if you are writing, for example, if you're writing something on me, my intellectual, uh, that how intellectual I am. So that would be, a hymn of mythology. Then you have Yajurved. So when I'm talking about this Veda, this Ved, we are talking about instructions for religious rituals, right? So proper instructions were given that how a specific ritual is to be performed. Suppose, for example, पूजा होती है, पूजा के ingredients पूरे proper होते हैं कि ये जैसे हवन होना है तो ये सामग्री
हवन में आपको डालनी है, ठीक है। आपको लेना है ये इतनी क्वांटिटी में, ये इतने इतने क्वांटिटी में आपको घी डालना है, आपको सामग्री डालनी है, आपको आपको जो डालना होता है वो आप अ, उसमें अ, हाँ, डाल सकते हैं विभूति, ठीक है। हवन कुंड में, ठीक है। और फिर हमारा अथर्ववेद आता है। सो देन वी हैव आवर अथर्ववेद, अथर्ववेद, राइट। So which spells, it casts spells, that is, magic and all, like spells, जैसे कि मंत्र उच्चारण हो गया, ठीक है, अगेंस्ट एनिमीज एंड डिजीजेस। सो जैसे आपने देखा होगा कि बहुत लोग मंत्र उच्चारण बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको संस्कृत आती है, उनको हिंदी अच्छे से आती है, तो वो मंत्रों का उच्चारण बिल्कुल सही कर सकते हैं। और उसमें आपको बहुत स्पेसिफिक होना पड़ता है, आपको आपका प्रॉपर इंटोनेशन होना चाहिए, प्रॉपर पंक्चुएशन होना चाहिए, आपका एक एक चीज प्रॉपर होना चाहिए। उसमें जहाँ पे गैप है वहां पे आपको गैप देना है, जहाँ पे पॉज है पॉज देना है, जहाँ पे आप मतलब ये सब चीजें होनी चाहिए, ठीक है। वो अथर्ववेद के अंदर आता है। देन वी हैव संहितास। सो इसमें mantras and benedictions again, what I've talked, like what I've spoken about, what I've talked about. Then we have brahmanas, brahmins, sorry, I am a Brahmin. Yeah. Then we have Brahmins. So commentaries, मुझसे गलती हो सकती है, लेकिन आप लोग उस गलती को सुधारोगे। आप लोग देखोगे कि जहां जहां अगर मैंने गलती करी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये आपसे गलती हुई है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और वो नोटिफिकेशन बेल आइकन को ना प्रेस करके जाइएगा और ऑल वीडियोस पे सेट कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, तो ब्राह्मण्स जो थे वो बेसिकली कमेंट्रीज करते थे रिचुअल्स पे या ऑर्थोप्रेक्सी पे, ठीक है। सो कमेंट्रीज वर डन ऑन रिचुअल्स, ऑन ट्रेडिशंस एंड orthopraxy, right? Then we have Aryana Aranyakas, sorry, Aranyakas. थोड़ा मेरा मुझे वर्क करना पड़ेगा। सो देन वी हैव आर्यनाकास, सिंबॉलिक सैक्रिफाइसेस एंड विल्डरनेस टेक्स्ट। सो इसमें इस इन विषयों में जो जिनका अर्थ, जो किसी चीज का कोई अर्थ होता था विशेष रूप से, तो हम उस अर्थ का क्या और उच्चारण है और क्या उदाहरण है, अ, उस अर्थ से क्या उद्धार हो सकता है लोगों का, उसका क्या मीनिंग है, क्या इंटरप्रिटेशन है। सो सिंबॉलिक सैक्रिफाइसेस एंड वो सब था, वो सब टेक्स्ट थे। फिर देन वी कम ऑन टू उपनिषद्स। So herein we have meditation, philosophy, and spiritual knowledge. So meditation, as you all spirituality, spiritual knowledge, awakening of that, and philosophy, वो सब ठीक है। I hope you're understanding this way because I'm uh, making use of bilingual language, that is, English, so that you people can understand in a better way. All right, then we have wilderness translation. So we have karma, kanda. Then we have the Aryanakas. Then we have uh, Gyananda Kanda, right? Uh, I'll tell you the English names first. So we have the action and sacrifice, the bridge, and the knowledge and spirituality. So it's Gyan. Also, you can, I think, call it, right? So basically we are talking about in the first one, in action and sacrifice, we are talking, the focus is on the Brahmins, right?
So proper performance of external, highly structured, sacrificial rituals, that is orthopraxy. Then we have the Aryanikas, the bridge. It's technology is basically Aryan, Aranyaka, sorry, अरण्यकास हैं, ठीक है। अरण्यका बिलोंगिंग टू विल्डरनेस, जो कि विल्डरनेस से थे associated. Then we have texts studied away from society, so where one cannot see the roofs of the settlement, so where one cannot see, one is unable to see the roofs of settlement, so text studied away from society, right? Then shift from physical rituals to symbolic meta rituals, understanding the meaning of the sacrifice. So meta, whenever meta word comes, metaphysics, like you guys, the science students might be able to relate with it, along with, obviously humanities students, because they can't, I mean, humanities students are always far ahead. So meta is, whenever meta is used, it refers to something that is beyond, right? So then we have Gyan Khanda. So knowledge and spirituality focus, so the Upanishads. So we have the internalized philosophical treatise, focusing on the Atma, that is soul. So वो focus करते थे, उनका major focus जो रहता था, उनका जो major जिस चीज पे वो करते थे, वो सेंट्रल पॉइंट जो रहता था, वो आत्मा रहती थी अपने अंदर की, ठीक है। और ब्राह्मण, जो कि एक अल्टीमेट रियलिटी होती है, ठीक है। तो ब्राह्मण का मतलब, जैसे मैं ब्राह्मण हूं, ठीक है, ब्राह्मण का मतलब ब्रह्मांड से भी होता है एक, तो ठीक है। देखिए आप सब, इंडिया में बहुत ज्यादा, एक चीज मैं ये कहना चाहूंगी, और ये मैं बहुत ही, मतलब ये मैं कहना चाहूंगी एक चीज बहुत ही अपने मेरे दिल और दिमाग में हमेशा से रहती है, कि हम सब ना एक हैं, हमें तोड़ा के, ताकि हमें हमारे नेशन को तोड़ा जा सके। हमारा नेशन सिर्फ आप जैसे देख रहे हैं अभी, वो नहीं था। बीच में आइलैंड्स थे जिसमें लोग थे सारे, फिर वो कोई इधर चला गया, कोई इधर चला गया, कोई इधर चला गया, वो अलग सेटलमेंट हो गई, ठीक है। बट अदरवाइज वैसे, और वैसे भी मदर अर्थ मदरलैंड जो हमारी है वो एक ही है, हमारा प्लैनेट हमारे पास एक ही है। तो हमें, और हम जो है इंडिया में स्पेसिफिकली, जो ये सिस्टम था ना, ये वर्ना सिस्टम जो था, ये किसी को, ये बात मैं हिंदी में कहना चाहूंगी, ये किसी को कम करने के लिए या कम दिखाने के लिए नहीं था। ये इस रूप से बनाया गया था कि हर एक इंसान, जिसकी जिस चीज में कला है, जो जो कला है, जिस जिस विशेष फील्ड में उसकी वो कला है, जो जो उस इंसान को बहुत अच्छे विशेष रूप से आता है। अगर किसी को यज्ञ करना आता है, उस वो करेगा। अगर किसी को बहुत अच्छे से तीर, और बहुत अच्छे से फाइटिंग आती है, वॉरियर है, वो क्षत्रिय होगा। अगर कोई साफ सफाई में बहुत अच्छे से काम कर रहा है, साफ सफाई, एक तरह से सफाई कर्मचारी भी नहीं, सफाई अभियान, जो जिसने अपने कंधों पे सफाई का लिया है, तो वो फिर उसमें आ जाते हैं, शूद्र में। और मतलब ये किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं था, कि शूद्र हो या ये हो या दलित हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ये हमें दिखाया गया है इंडियंस को, और ये बार बार ये जो डिस्टिंक्शन है, और मैं तो ये कहूंगी कि अभी जो हो रहा है वो डिस्क्रिमिनेशन। बताऊं कैसे, पता है कैसे? गवर्नमेंट जॉब्स में SC ST OBC को, मैं किसी के खिलाफ नहीं, लेट मी टेल यू दैट,
मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि जनरल कैटेगरी का एक हमेशा कैंडिडेट होता है, और जनरल कैटेगरी की एज बहुत कम होती है। और जबकि वहीं पे SC ST OBC को बहुत, मतलब अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स मिल जाते हैं, या 35 या 40 तक की एज तक वो जॉब ले सकते हैं। ये मैं कह रही हूँ गलत बात है। EWS मतलब ये आप आपको अगर देना है बेनिफिट्स किसी को, तो हाँ ठीक है, मैं मानती हूँ किसी को अगर कोई PWD है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो चलो उसको बेनिफिट्स अगर कोई मिलते हैं तो आप दे सकते हैं। या असली में जो इकोनॉमिकली वीक सोसाइटी से आते हैं, चाहे वो कोई ब्राह्मण फैमिली के भी हो सकते, जरूरी नहीं कि वो कोई शूद्र फैमिली के ही पुअर हैं, तो वो वहीं के हैं, ब्राह्मण की फैमिली के भी पुअर हो सकते हैं। और मैं ये जानना चाहती हूँ कि ब्राह्मण फैमिली, कहते हैं कि ब्राह्मण्स ने रूल किया है। आप खुद बताइए, ब्राह्मण तो हर एक के पास जा जाके मांग के खाते थे, जो भी उन्हें जो भी दक्षिणा दे देते थे, वो लेते थे। वो वो अपनी जितनी विद्या होती थी वो समेट के विद्या का दान देते थे, और साथ में वो खाने का वो लेते थे, कि वो भी भटक भटक के। तो आप बताइए, ब्राह्मण ने कैसे डोमिनेट करा है? मुझे ये मुझे ये बताइएगा कमेंट सेक्शन में प्लीज। और अगर करा है कहीं पे किसी स्टेट में, जो कि एक एक स्टेट होगी, लेकिन आप उसका ऐसे नहीं कर सकते। और अभी जो सिचुएशन है वो डिस्क्रिमिनेशन है। इंडिया की औरतें बहुत स्ट्रांग थीं, और इंडिया की औरतें एक दूसरे को सपोर्ट करती थीं। अब ऐसा नहीं है। अब सिनारियो बहुत चेंज हो गया है। अब एक लड़की लड़की की दुश्मन है, एक औरत की दुश्मन। ऐसा क्यों? डिवाइड एंड रूल। ठीक है। सीधा सीधा ये मैं जानबूझ के आपको हिंदी में समझा रही हूँ, क्योंकि मैं ये चाहती थी ये जनता, ये सारी जनता को पहुंचे बात मेरी। मैं सिर्फ एक जने को नहीं समझाना चाहती थी, चाहती थी, मैं ये चाहती हूँ कि ये मासेस तक जाए, मेरी आवाज जो है ये मासेस तक जाए, और सबको पता चले कि हमारे साथ भी जो ब्राह्मण के साथ अब हो रहा है वो गलत है, किसी भी रूप से सही नहीं है। गवर्नमेंट, आप नौकरियों में जाके देखिए, हमारे लिए बहुत मुश्किल है। हमारे लिए नौकरी पाना, हम अभी, मैं अपनी बात करूं या किसी और की बात करूं, हमारे लिए नौकरी लेना मुश्किल है। हमें कोई खास फैसिलिटी नहीं मिलती है, हमें ना पानी फ्री मिलता है, ना बिजली फ्री मिलती है, ना कुछ फ्री नहीं है हमारे लिए, ना सब्सिडीज होती हैं, ना कुछ बैंक खाते में कुछ खाते में कुछ पैसे आते हैं, कुछ नहीं आता है। तो हमारा बचत कहीं नहीं होती है। आप आप लोगों की बचत होती है, आप लोग कमाते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप कमाना हर एक को चाहिए, और जॉब हर एक को मिलना चाहिए मार्केट में। मैं ये बस कह और मैं ये कह रही हूँ कि इक्वालिटी होना चाहिए, और इक्वालिटी का मतलब इक्वालिटी होता है जहां पे किसी को ऊपर रखा जाए, किसी को नीचे रखा जाए। क्या वो इक्वालिटी है? क्या वो इक्वालिटी है? एक ऊपर एक नीचे? नहीं ना। तो आज SC ST OBC EWS और पता नहीं न जाने कितनी कैटेगरीज ऊपर हैं, और ये हम ब्राह्मण्स नीचे हैं। बस यही समझाना चाहती थी मैं आपको। और मैं चाहती हूँ इस इंडिपेंडेंस डे पे अ, मेरा ये मुद्दा उठे। और क्योंकि मैं जेन जी भी हूँ, और मैं टीचर भी हूँ, मैं एक गुरु भी हूँ, उसी पद गुरु होने के नाते गुरुकुल की शिक्षा और वैज्ञानिक शिक्षा का महत्व
बहुत अच्छे से जानते हैं। अभी तक मैं आपको एक दोस्त के नाते, मैं आपको एक तरह से, मैं आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रही थी कि आप लोग समझ सकें। आप मैं आपसे एक अध्यापक की तरह कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि आप समझ सकें मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। The focus is the Upanishads. So we have the internalized philosophical treatises focusing on the Atma, जो कि एक soul है, and Brahman, जो कि एक ultimate reality है। तो ब्राह्मण, मैं यहाँ से मैंने शुरू किया था पॉइंट। ब्राह्मण जो एक शब्द है, वो ब्रह्मांड से आता है। इसमें कोई बुराई नहीं। हमारा ब्रह्मांड, हम कहते नहीं है, हम ऐसे इसको, इस शब्द का उच्चारण नहीं करते, ब्रह्मांड। वैसे ही ब्राह्मण है। ब्राह्मण वो है जिनको विद्या कैसे संभालनी थी, उसको कैसे कोडिफाई करना था, वो मैंने आपको इसलिए लिखा था ताकि आप कोडिफिकेशन, ताकि आप रिलेट कर सकें। क्योंकि आजकल आप बहुत ज्यादा इंटरनेट सावी डाउनलोड, आपको इंफॉर्मेशन डाउनलोड करनी पड़ती है, तो उसके लिए सॉफ्टवेयर भी तो प्रॉपर होना चाहिए ना, जेन जी वाला। तो वो लगा के मैं आपको दे रही थी। लेकिन अब थोड़ा सा वापस से अपने रूट्स की तरफ खींचे चले आए। वो बहुत जरूरी है, विशेष रूप से भाई बहुत जरूरी है। ठीक है, ये हमारा कर्तव्य है। जेंजी, जेंजी हो क्या? हम जेंजी हैं, पता है हमें। हमसे पहले वाले गोल्डन एज के थे, वेद एज के थे। अगर वो करने लग जाए ना एक बार, ब्राह्मण्स और वेद एज के, वेद काल के, और भी पहले, न जाने कितने, जब से हिंदुस्तान जो हिंदुओं का स्थान था, जहां मंदिर बसते थे, जहां मंदिरों का आविष्कार ऐसे होता था, और ऐसे रूप में उनको निखारा जाता था, निहारा जाता था, निखारने के बाद कि वो एक इंसान की फ्रीक्वेंसी और आसमान की फ्रीक्वेंसी को कनेक्ट करता था। ये वो धरती है, ये वो अंबर है, ये वो चेतना है, ये वो मन है ब्रह्मन का, ये वो रियलिटी है, वो सच है, वो सत्य है। प्रेम ही सत्य है ना? यूनिटी इन डाइवर्सिटी, दैट इज द रियल ट्रुथ। सारे रिलीजन्स का, एंड वी शुड रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स आउट देयर। हमें सारे रिलीजन्स को इज्जत करना चाहिए, लेकिन अपने रिलीजन को कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। हमारा रिलीजन सबसे ऊपर है, और हमें एज इंडियंस पता ही नहीं हिंदुइज्म कितना कितना रिच है, कितना ऊंचाइयों पे खड़ा है। जितना हमारी सोच तो कुछ सोच ही नहीं सकती है ना। वो अदृश्य है, हमारे दृष्टि से उसका कोई लेन देन नहीं। मतलब हम देख ही नहीं पाते। हमारे हमारे पास इतने अनमोल रत्न, हमारी हिंदी है, हमारी भाषा संस्कृत है, हमारे पास हमारे, ये धरती सबसे ज्यादा अनमोल तो हमारी धरती, हमारे गाय माता, गौ माता, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी, और मैं किसी पार्टी के अगेंस्ट नहीं हूँ। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी पार्टी। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगी, लेकिन और I didn't want to bring politics at all into this picture, but गौ माता जो हमारी है, वो माता है, माँ समान यानी कि। जिन लोगों को ये बात समझ नहीं आती ना, उनको मैं शिक्षा, ये चीज, एक चीज की प्रदान करना चाहूंगी। वो ये है कि
हमारे भीतर जान है, हमारे भीतर जैसे सांस हमारी चलती है, हमारे श्वास चलते हैं, है ना। सांस श्वास को एक पाथ देती है। वैसे ही, वैसे ही क्या होता है, जैसे सांस श्वास को पाथ देती है। मैं क्या कहना चाह रही थी, वैसे ही हिंदुइज्म एक ऐसा रिलीजन है जो हमें आत्मा भरता है, हमें सांस भरता है, हमें सच्चाई सत्य भरता है। और कण कण में, हाँ मैं ये बोलना चाहिए, कण कण में विश्व के आप देखें तो आत्मा बस गया। आप देखें, आत्मा है, सोल है। आप चाहे, you know, whether you talk about animate things or inanimate objects, आप अगर लिविंग, अगर आप प्राणियों की बातें, अगर आप अ, यदि आप इंसानों की या किसी भी अन्य जाति प्राणी की बात करते हैं, तो आप देखेंगे कि उनमें प्राण होते हैं। लेकिन अगर हम किसी लिविंग थिंग की बात ना करके, लिविंग इंसान की बात ना करके, नॉन लिविंग एंटिटी की बात करते हैं, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, जो हम कहते हैं ऐसा नहीं होता है, इसमें भी एनर्जी होती है। साइंस, आप साइंस साइंस करते हैं ना, उसी साइंस में अगर आप ध्यान से ऊपर की ओर जाएंगे ना, अगर आप रिलीजन को मानेंगे, आपको पता चलेगा साइंस कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है। ये मैं आपको दोस्त की तरह बता रही हूँ, ठीक है। बीच बीच में मैं आपकी दोस्त बनूंगी, बीच बीच में आपकी मैं गुरु बनूंगी, ठीक है। और आपको मेरे साथ दोनों दोनों तरीकों से बातचीत वार्तालाप करना होगा, ठीक है। फिर हम किस पे आते हैं, द फोर रूट्स ऑफ लॉ, ठीक है। फिर हम फोर रूट्स ऑफ लॉ पे आते हैं। सो ये धर्म मूलास होते हैं। जैसे कि हम, मैं भी सीख ही रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही मेरे को सब कुछ आता है, ऐसा मैंने नहीं कहा है मेरे को पूरा ज्ञान है, लेकिन मैं ये जानती हूँ हमारे शास्त्र, जितने भी शास्त्र हैं, हमारा हिंदुइज्म, हमारे वेद, हमारे मैन्युस्क्रिप्ट्स, हमारे स्क्रिप्चर्स, हमारा सब कुछ, एक एक चीज, जबकि उन्होंने सब कुछ जला दिया था, सब कुछ बर्बाद कर दिया था, 6-8 महीने लाइब्रेरीज जली, सब कुछ हुआ, सारा कुछ विनाश कर दिया, सबका खात्मा कर दिया। तो मतलब मैं बोलूं तो औरतों को भी नहीं छोड़ा, लेकिन औरतों ने भी सिर्फ और आपको मैं एक होमवर्क दूंगी कि सिर्फ रानी लक्ष्मीबाई नहीं है, बहुत और औरतें हैं जिन्होंने इंडिया के लिए लड़ाई करी है। और उसके बाद एक ऐसे इंसान थे जो इंडिया वापस 13 साल बाद आए, उनकी हिम्मत नहीं हो पाई कि वो वापस आ सकें। खिलजी की बात कर रही हूँ मैं, 13 साल या 12 साल ऐसा था। और मतलब अकेली औरत ने फाइट करा, वो भी अपनी कम आर्मी के साथ, कम लोगों के साथ, उनकी बहुत ज्यादा थी लेकिन एक, कभी भी भारत में ना अबला नारी नहीं थी। भारत में ना हमेशा शक्ति माँ, हम शक्ति हैं। शक्ति का अर्थ है एनर्जी, और हम एनर्जी हैं। अच्छा, तो आगे चलते हैं। How does one know what is right? That is dharma. So how does one know what's one's dharma, right? When society changes, when society undergoes a lot of change. Classical Hindu law relied on the top-down hierarchy of authority. So top-down authority, हम ये जैसे पिरामिड है, ठीक है। So
a pyramid is given to you guys and इसमें ना टॉप डाउन अप्रोच है। टॉप डाउन अप्रोच का मतलब होता है ऊपर से नीचे की ओर जाना, ठीक है। अब हम देखते हैं श्रुति, फिर आता है स्मृति, फिर आता है सदकारा, फिर आता है आत्मस्तुति, ठीक है। तो आत्मस्तुति, ठीक है। श्रुति हम देखते हैं तो वो रेवलेशन है, जो कि वेद है, जो अल्टीमेट एब्सोल्यूट फाउंडेशन है ऑफ धर्म, ठीक है। स्मृति जो है वो ट्रेडिशन है, जिसके बारे में हमने बातचीत करी भी है। वो पोस्ट वैदिक स्क्रिप्चर्स हैं, रिटेनिंग द मेमोरी ऑफ लॉस्ट वैदिक नॉलेज, जो मेमोरी रिटेन करते हैं, जो वैदिक नॉलेज जो लॉस्ट हो गई थी, तो स्मृति वो है, ठीक है। फिर सदाकारा है, जो कि कंडक्ट बताता है, जैसे द एस्टैब्लिश्ड कस्टम ऑफ वर्चुअस एक्सपोर्ट्स, जैसे सिस्टास डिबेटेड इन असेंबलीज, परिषद। तो जैसे अब हम देखते हैं, जैसे पार्लियामेंट, हम फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ पार्लियामेंट एंड लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ एमयूएन। मैंने बहुत एमयूएन करे हुए हैं, मैंने स्कूल में एमयूएन करे हुए हैं। मैंने जब मैं मास्टर्स कर रही थी, मैंने तब भी मास्टर्स करते हुए मैंने करा था। एमयूएन में थी मैं, डेलीगेट थी। तो वो तो कुछ भी नहीं है इसके सामने। ये उस हम समय की बात कर रहे हैं, उस समय की बात कर रहे हैं। और उस समय पे भी सिस्टार्स होते थे, कस्टम ऑफ वर्चुअस एक्सपर्ट्स यानी कि, ठीक है, उनको सिस्टार्स कहा जाता था, जो कि डिबेट करते थे, असेंबलीज होती थी, परिषद होते थे, जैसे अब कहते हैं जन परिषद, है ना। बस वो यहीं से आए। कहाँ से आए हैं टर्म्स, आपको क्या लगता है कहाँ से आए हैं हमारे मेजर नेम्स या टर्म्स? वो हमारे पुराने इन्हीं शास्त्रों से आए हैं। इनफैक्ट इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि हमारे हिंदी संस्कृत से लिए गए हैं। और आत्म आत्मस्तुति, जो कि आत्मस्तुति जो कि सेल्फ सेटिस्फैक्शन है, जो कि पर्सनल preference है, the final deciding factor when higher texts are silent, provided it doesn't contradict them. So personal preference, जब भी आत्मस्तुति होती है, जब भी हम सोचते हैं कि क्या पर्सनल प्रेफरेंस हम देंगे, तो फाइनल जो हमारा डिसीजन होता है, जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है, जब हायर टेक्स्ट जो होती है वो साइलेंट होती है एंड प्रोवाइड कर एंड प्रोवाइडेड इट डजंट कॉन्ट्रडिक्ट देम, वो कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करनी चाहिए, तो वो हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब हम टेक्सचुअल इवोल्यूशन ऑफ लॉ पे जाते हैं। अब हम आते हैं धर्म सूत्रास पे और धर्म शास्त्रास पे, ठीक है। थर्ड सेंचुरी बीसीई से फर्स्ट सेंचुरी सीई तक है, ठीक है, धर्म सूत्रास। धर्म शास्त्रास होते हैं सेकेंड सेंचुरी सीई, एट सेंचुरी सीई, ठीक है। स्टाइल हम देखेंगे, धर्म सूत्रास का स्टाइल है, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। हमारा स्टाइल जो है वो एफ्रोस्टिक प्रोज है, जो कि सूत्र है, ठीक है। टोन जो है आर्गुमेंटेटिव एंड कन्वर्सेशनल है। कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि वो प्रिजर्व करती है स्कॉलरली डिबेट्स को एंड you know basically it's all about dissenting opinions. Then authority places high value on the custom of term experts, and key text would be apastam bhadram भद्रम सूत्र, ओके। धर्म शस्त्र जो है हमारे, वो स्टाइल है मेट्रिकल वर्स, जो कि श्लोक है, ठीक है, जैसे श्लोकाज होते हैं श्लोक कहते हैं। टोन जो है असर्टिव एंड एब्सोल्यूट है। कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे एलिमिनेट्स डिसेंट, फ्रेम्ड एज डिवाइन रेवलेशन। अथॉरिटी होगा इनोवेटेड बाय क्लेमिंग ऑथरशिप फ्रॉम द क्रिएटर गॉड। स्वयं भाव एंडिंग डिबेट,
स्वयंभू, एंडिंग डिबेट, की टेक्स्ट होगा मानव धर्म शास्त्र मनुस्मृति। ठीक है। डायग्नोस्टिक कंपैरिजन हम कर रहे हैं वेदास और पुराणास में। ठीक है, वेदास वर्सेस पुराणास। ठीक है। अब हम देखेंगे एरा ऑफ कंपोजिशन, कैटेगरी, स्केल, कंटेंट, फोकस। हम वेदास में देखेंगे और पुराणास में देखेंगे। पहले हम वेदास के विषय में देखते हैं। तो ये 1500 से लेकर 900 BCE ओरल ट्रेडिशन को फॉलो करता है। श्रुति जो है वो sorry, it is all about revelation and absolute authority. Then we have four main texts with precise subdivisions. Then we have Canaan Fergus, which is mythological hymns, rituals, spells, esoteric philosophy. And then we have Puranas, which start from third and gives around 10th, gives around about 10th century CE. Then we have Smriti, it falls under the category of Smriti. Tradition would be equal regard, lower technical authority. So in Shruti, it was all about revelation and it was all about absolute authority. Over here, it is all about equal regard and lower technical authority. The scale would be 1 Maha, 17 major, and 18 minor over 40 or 4 lakh verses. Then we have content focus. So it talks about cosmology, genealogy, demigods, heroes, medicine, astronomy, right? Then we have Akyana, the embedded narrative system. So we have the embedded sub-narrative. So we have the primary dialogue and then we have the outer framework. Samhita Karna, that is collation. ठीक है। प्राइमरी डायलॉग जो है वो किंग परीक्षित जो है, facing imminent death, seeking liberation. So he's actually, seeking liberation, and Sage Shuk narrating the nature of the divine, and he's actually narrating the nature of the divine. Embedded sub-narratives would be Bhagavad Purana, childhood leelas, miracles, and divine play. Defeat of demons, symbolic moral battles. So they were not actually, the battles that were, sometimes, most of the times they're symbolic and sometimes they're realistic too. Don't think that they're not. Don't think that they're only, mythologies and all that stuff. They do have evidences. We do have evidences. So हमारे हिंदुइज्म में evidences हैं, सब कुछ है, लेकिन हमें उस रूप से रखना नहीं आता है कि हम किस रूप से हम अपनी बातचीत करें, हम दिखें कि हमें कोई प्रूव करने की किसी को जरूरत नहीं है कि हम कितने अच्छे हैं, हम कितने अच्छे विचार, शुद्ध विचार रखते हैं, हम कितने इंटेलेक्चुअल हैं। हमें किसी को ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है। सामने वाले को दिख जाता है कि कौन कितना हॉलो है, कौन कितना शैलो है, कौन कितना इन डेप्थ, कौन कितना नॉलेजेबल है, कौन कितना वाइज है। हमें वाइज बनना है, हमें नॉलेजेबल बनना है। और बहुत मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो अपने आप को बहुत सोचते हैं हम बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, बहुत साइंस 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 करते हैं, साइंटिफिक फॉरवर्ड सोचते हैं कि हम में है, लेकिन उनको कोई नॉलेज नहीं है, अंदर से वो खोखले हैं। असली नॉलेज तो विद्या, मतलब मैं आपको क्या बताऊं कि असली नॉलेज, संपूर्ण नॉलेज विश्व की भरी हुई है और वो कोई भी ले सकता है। ऐसा कुछ जो ये डिविजन करके बैठे हुए हैं लोग, बहुत 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 पुराने टाइम से मैं देख रही हूँ कि
लाइक सेंचुरी, नॉट सेंचुरीज, बट काफी टाइम हो गया है, लाइक 3-4 पीढ़ी तो हो गई होगी कि साइंस साइंस साइंस, कॉमर्स 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 ऐसे, और ह्यूमैनिटीज तो बेचारे को लास्ट में रखा जाता है। ह्यूमैनिटीज ना ह्यूमंस के लिए बना है। कभी भी हमने काटना पीटना, लाइक मेरे को काटना पीटना, ये सब हम बिना काटे पीटे काम कर सकते हैं। हम वो काम कर सकते हैं बिना काटे पीटे जो वो काट पीट कर भी नहीं कर पाते। तो फायदा नहीं, नुकसान पहुंचाने का किसी भी जानवर को, किसी भी किसी भी एनिमल को। आउट ऑफ फ्रेमवर्क जो हम देखते हैं, संहिता का कराना, कोलेशन, कंपाइलिंग, आख्याना, what the narrator observed, upakhana, gatha, and kalpasuddhi into a single text. एंड रासलीला होती है जो कि डिवाइन डांस होता है ऑफ लव एंड सोल्स यर्निंग, यू नो। सो या आपने देखा होगा कृष्ण जी और राधा रानी जी का भी डिवाइन डांस होता था। शिव जी और माँ शक्ति, माँ पार्वती का भी डिवाइन डांस होता था, रासलीला होती थी। रासलीला तो कृष्ण जी और राधा रानी की थी। आई शुड रादर सी राधा रानी एंड कृष्ण जी, क्योंकि हमारे इतिहास में हमेशा से लड़कियों का नाम पहले लिया जाता है, बाद में लड़कों का नाम लिया जाता है। पहले हमेशा एक लड़की, या आप लोग जैसे शादी के बाद कहने लग जाती हैं जिसको औरत, औरत का नाम लिया जाता है, फिर मर्द का नाम लिया जाता है, या मैं कहूँ पति का नाम लिया जाता है उसके। ऑलराइट, सो जबकि अब जो मॉडर्न टाइम है, अब के टाइम में पहले पति का नाम लिया जाता है हर चीज में, पिता का नाम लिया जाता है, बाद में माता का नाम लिया जाता है, बाद में माता का नाम पूछा जाता है, या पूछा ही नहीं जाता है कहीं। आप हैरान होंगे, बहुत सारे फॉर्म्स भरती हूँ मैं, और मैं उसमें एज अ टीचर आई हैव नोटिस्ड दिस एंड आई हैव ऑब्जर्व दिस कि वो पूछते हैं फादर्स ऑक्यूपेशन, मदर्स ऑक्यूपेशन क्यों नहीं, या वो पूछते हैं फादर्स नेम, मदर्स नेम क्यों नहीं, पहले पहले फादर्स नेम क्यों नहीं? ये हमारा हमेशा से कल्चर नहीं था, ये कल्चर बदला है। और ये कल्चर आपको पता है किसने बदला है और क्यों बदला है, फिर भी हम इसी कदम पे चलते जा रहे हैं। The Bhagavad Gita, the ultimate synthesis. Then we have the context, and then we have the dialogue. So we have embedded within the massive Mahabharat epic. So we have the dilemma of facing war. Prince Arjuna hesitates to perform the dharma. That is, his duty. So dharma is equivalent to duty, performing one's duty. Your dharma is to study, to gain knowledge, to gain wisdom. My dharma is to give you knowledge, to give you wisdom, to enhance myself, to enhance my knowledge, to add on to my knowledge, right? Duty as a warrior. His was that he was a warrior, so at that time he had to fight. So his dharma at that point of time changed, and he had to be the warrior, right? And over here, we get to see a metaphor for the eternal dialogue between two selves. So we have the empirical, mutable, individual self. So empirical, mutable, individual self, Arjuna, and the supreme, changeless, absolute, that is Atma, या Brahman, जो कि ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड, जो कि कृष्णा है, none other than कृष्णा। फिर हमारा फिलोसफिकल इनोवेशन ऑफ द गीता आता है, जो कि रिजेक्टेड पाथ दिखाता है, श्रमानिक नॉन एक्शन दिखाता है, एम्ब्रेस पाथ दिखाता है, निष्कामा कर्म दिखाता है, डिजायरलेस एक्शन दिखाता है। सो जब हम रिजेक्टेड पाथ की बात करते हैं, श्रमानिक नॉन एक्शन की, उसमें escaping the cycle of rebirth, that is samsara, becoming an ascetic, retreating from the world, avoiding all karma,
एक्शंस। एम्ब्रेस पाथ के अंदर आता है निष्कामा कर्मा, डिजायरलेस एक्शन। इसमें आता है द इनोवेशन, रिनाउंसिएशन इन एक्शन, नॉट इनउंसिएशन ऑफ action, the mechanism, fulfill worldly duty, dharma, but detached completely from the desire, from personal rewards or the fruits of action. By attributing all actions to God, every aspect of life becomes a way of salvation. फिर हमारा आता है कंसेप्चुअल ध्यान। ठीक है, फोर योगास आते हैं इसमें। भक्ति योगा आता है, कर्म योगा आता है, राज योगा आता है, जन योगा आता है। एक्चुअली ये योग है। ठीक है, और अब देखते हैं हम हिंदी में इसको योग कहते हैं, इंग्लिश में इसको योगा कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये अंग्रेजों से बोला नहीं जाता। ठीक है, इसी कारण। अब देखते हैं फॉर द इमोशनली एंगेज्ड, सरेंडरिंग the self to a personal God, the foremost and easiest path. That's Bhakti Yoga, right? For the emotionally engaged, surrendering the self to the personal God, the foremost and easiest path. That's what people believe, but it's, trust me, it's not. Then we have Karma Yoga, जो कि एक्शन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, for the active and action driven. So those who are very action driven, they want to attain liberation through selfless duty. That's the Karma Yoga. For example, if you're studying for your exams, तो वो कर्म योग होगा। ठीक है, अगर मैं अपना अच्छे से कर्म निभा रही हूँ, अगर मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, अगर मैं आपको कुछ दान में दे रही हूँ, कुछ विद्या दान में दे रही हूँ, कुछ अच्छी चीजें बता रही हूँ, मोरल वैल्यूज दे रही हूँ, या मैं आपको ज्ञान प्रदान कर, तो वो ज्ञान को लेना और उस ज्ञान का अच्छे से अभिनंदन करना, वो कर्म योग होगा। ठीक है, ऐसे राजयोग होता है जो कि मेडिटेशन होता है। सो इट्स बेसिकली फॉर द एक्सपेरिमेंटल स्पीकिंग, सॉरी आई एम सो सॉरी, seeking, so Heron, oh, we are talking about seeking the self through deep internal meditation and spiritual discipline. So Raj Yoga तब होता है जब basically it's all about meditation। जब आप meditation की बात करते हैं, आप deep internal, आप अपने आप को, आप जैसे आपकी कीपिंग क्वाइट पढ़ी होगी आप लोगों ने, ज्ञान पढ़ रहे होंगे आप लोग, क्लास 12th की है, अगर नहीं पढ़ी है तो आप जाके पढ़ सकते हैं। क्लास 12th की कीपिंग क्वाइट है, पाब्लो नेरुदा ने लिखी है। लेकिन आप देखिए कि ये सारी चीजें आपको ये खुद नहीं एहसास होता क्या कि ये सारी चीजें जो लिखी गई हैं लेखकों से या कवियों से या राइटर से, ये सब कहीं ना कहीं हमारे हिंदुइज्म फिलोसफी के अराउंड रिवॉल्व करती हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा है, सब ने हमारा ही चुराया, लेकिन कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। So, for the experimental, seeking the self through deep internal meditation and spiritual discipline। ठीक है, जैसे आज के जमाने में कोई किसी को क्रेडिट नहीं देता है। अगर मैं आपको कोई ज्ञान प्रदान कर रही हूँ, आप मुझे कल को क्रेडिट नहीं दोगे कि ये ज्ञान मुझे सुप्रीति जोशी मैम से मिला है। ये मैंने वहां उस वीडियो में देखा था। अगर आपने आज कहीं से देखा है, कुछ सीखा है, सपोज करो आपने, चलो मैथ्स का सम सीख लिया, चलो साइंस का सम सीख, साइंस में कोई फिजिक्स में हमने था कंसेप्ट वो सीख लिया, केमिस्ट्री का फॉर्मूलाज रट लिए, या आपने साइकोलॉजी का कर लिया, या हमने आईपी का कर लिया, या हमने इकोनॉमिक्स कर लिया, कुछ भी कर लिया। ठीक है, और उसके बाद आप क्रेडिट ही ना दो अपनी टीचर को, अपने गुरु को, तो उस विद्या का भी कोई अर्थ नहीं है। इट हैज नो मीनिंग अटैच्ड टू इट, उसका अर्थ नहीं है, क्योंकि आपने सिर्फ उस विद्या को एज मतलब हमने वो रटने का भी नहीं है, क्योंकि रटना अच्छी बात होती है। पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगी। दूसरी बात ये है कि हमें किसी को कॉपी नहीं करना चाहिए, और तीसरी बात ये है कि आपने अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी, आप नहीं रहे। ठीक है, और फिर हमारा है
आपको आपको डीपली इंटरनली सोचना है। क्या सोचना है आपको? आपको सोचना है कि आपको कैसे स्पिरिचुअल डिसिप्लिन मेंटेन करना है। और आपको नहीं लगता कि ये हमारे हिंदू धर्म से मिलता जुलता है? ऑफ कोर्स मिलता जुलता है। आपको नहीं लगता कि ये बौद्ध धर्म से मिलता जुलता है? ऑफ कोर्स मिलता जुलता है। बौद्ध धर्म दैट मीन्स बुद्ध, दैट मीन्स बुद्धिज्म, राइट? उससे मिलता जुलता है। आपको नहीं लगता बुद्धिज्म हिंदुइज्म से मिलता जुलता है? ऑफ कोर्स मिलता जुलता है, क्योंकि बुद्धिज्म हिंदुइज्म से बहुत सारी चीजें हैं जो उन्होंने ली हैं। ये नहीं कहूंगी कॉपी करी है, लेकिन हाँ, ली हैं सब। एक तरह से कॉपी करना ही हो गया, लेकिन ली है। ठीक है, सबने ली। आप देख लो क्रिश्चियनिटी, आप देख लो इस्लाम, आप देख लो सिखिज्म, सबने ली है। और मैं तो खुद एक पंजाबी हूँ, लेट मी टेल यू, तो ऑफेंड होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको बस ये बताती हूँ कि सबने कुछ ना कुछ लिया हुआ है हमसे, हिंदुस्तानियों से, हिंदू से। और हम अपना अपने आप को छोड़ के औरों की शिक्षा को बेहतर बताते हैं। मतलब मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं आजकल, तो स्पेशली जेन जी के बाद तो ये जो हुआ था, उसके बाद वो गलत बात थी, डेफिनेटली गलत है। मैं उसको कभी भी सही नहीं मानूंगी कि जो वो गलत है वो गलत है। जो नीट में हुआ, जो पेपर लीक्स हो रहे हैं, वो गलत है। एथिकली भी, मोरली भी, हर मतलब ठीक है। पर इतना वो चीजें ऐसे कर देना, वो भी गलत है। और ऐसे विचार और ऐसे सोचना और ऐसे बोलना, ये बड़ों के लिए बहुत ही शर्मनाक, मतलब हमारे देश के लिए बात है कि युवा कहाँ जा रहा है। हमारे युवा को ये सब पता होना चाहिए, हमने धरती का अपनी कैसे हम कंजर्व करें, कैसे प्रिजर्व करें, कैसे मेंटेन करें, कैसे हम नदियों को बचा सकते हैं, कैसे हम नदियों को, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हम मॉडर्नाइजेशन का नाम दे रहे हैं, जो हम डेवलपमेंट का नाम दे रहे हैं, हर चीज को मशीन्स और ये सब चीजें, ये सब हमें कहाँ ले जा रही हैं? सोचा है पानी बचेगा? सोचा है लैंड बचेगी? सोचा है ट्रीज बचेंगे? सोचा है? कभी नहीं सोचा ना आप लोगों ने। आने वाली आपका तो पता नहीं, पर दो ऐसे चलता रहा तो 2-4 साल में भी एक कुछ भी, एक होने को तो 1 मिनट में भी कुछ हो सकता है। तो आप प्लीज अपनी तरफ से पानी को सेव करिए, आप अपनी तरफ से आप इलेक्ट्रिसिटी को सेव करिए, जो आपसे सेव होता है वो करिए। और फिर हमारा ज्ञान योगा आता है, जो कि नॉलेज होता है, जो कि फॉर द रिफ्लेक्टिव एंड इंटेलेक्चुअल होता है, जो कि डिसर्निंग द ट्रू सेल्फ, दैट इज स्पिरिचुअल फ्रॉम मैटर, प्रकृति। सो मैटर इज प्रकृति। जब हम एटम और मैटर की, एटम और पार्टिकल्स की बात करते हैं साइंस में, ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, तो हम की प्रकृति में भी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो प्रकृति की जब बात कर रहे होते हैं, वो नेचर है, ठीक है। प्रकृति, प्रकृति हमारे सारे इस तरफ प्रकृति है, वही हमारा। आप एक तरह से यही समझ लीजिए, अगर आप भगवान में नहीं मानते हैं, अगर आप किसी और धर्म में मानते हैं, अगर आप अल्लाह जी में मानते हैं, अगर आप जीसस क्राइस्ट में मानते हैं, अगर आप अ, गुरु नानक जी में मानते हैं, अगर आप लॉर्ड बुद्ध में मानते हैं, किसी भी भगवान, मतलब मैं तो उन सभी को मानती मैं सभी को मानती मैं उनमें मानती हूँ। मैं एक वो जो पावर है, कॉस्मिक पावर, क्योंकि है वो सभी एक ही, सबका मालिक एक, ठीक है, सबका मालिक एक ही है। लेकिन इंसानों ने डिवाइड कर दिया शैडो लाइंस से, ठीक है, जो कि दिखती नहीं है लेकिन है। फिर हमारा मास्टर मैप आता है, द मास्टर मैप सिंथेसिस ऑफ क्लासिकल हिंदुइज्म। सो हम देखते हैं ये स्ट्रक्चर है एक तरह से। सो वी हैव द कीस्टोन, दैट इज द Bhagavad Gita. So weaving ritual, duty, deep knowledge. So it is basically about weaving ritual, duty, deep knowledge, and profound devotion into a single worldview.
उसके नीचे हम देखते हैं तो mass axis है, so Puranas and epics हैं, so wrapping philosophy in compelling nested narratives accessible to all. So when you wrap philosophy, when you are wrapping philosophy in compelling nested narratives, which are accessible to all. So basically, we're talking about it. So wrapping philosophy in compelling nested narratives accessible to all. फिर हमारे पास social order आता है जो कि धर्म शास्त्रों के बारे में बात करता है. When we talk about translating, so we talk about translating truth into daily law, conduct, and social structure. फिर हमारा ब्रिज आता है. सो सोशल ऑर्डर बेसिकली धर्मशास्त्र के बारे में बात करता है, जो कि जब हम ट्रांसलेट करते हैं ट्रुथ को, मतलब हम एक्ट करते हैं, मतलब हम एक्ट आउट करते हैं, लाइक जैसे धर्म निभाना कहते हैं ना. धर्म, जो हम धर्म के बारे में विषय में बात कर चुके हैं, उसी धर्म को अब हम ज्ञान. सो ट्रांसलेटिंग योर डेली लॉ, कंडक्ट एंड सोशल स्ट्रक्चर. जब आप ट्रांसलेट करते हो अपने धर्म, अपने आपके दिमाग में जो चल रहा है, ये नहीं कि आज मैं ये करूंगी, आज मैं ये करूंगा, आज मैं ये करूंगी, आज मुझे ये पानी पीना है, आज मुझे ये करना है, आज मुझे वो करना है, आज मुझे वॉक पे जाना है, आज मुझे ये करना है. होता है ना, मेरे साथ तो बहुत होता है भाई. मैं एज अ फ्रेंड अब बात कर रही हूँ, ठीक है. मेरे साथ बहुत होता है. मैं रोज ये प्लान बनाती हूँ, मेरे जो प्लान बनाती हूँ, मेरा कोई प्लान सक्सेसफुल नहीं. आज तक जिंदगी में सक्सेसफुल हुआ, हमेशा हर प्लान फेल हुआ है. मैं सोचती हूँ मैं आज चलो यहाँ जाऊंगी, आज मैं यहाँ जाऊंगी, आज मैं यहाँ निकलूंगी, आज मैं वहां निकलूंगी, पर ऐसा कभी नहीं होता है कि मैं निकल पाऊँ. मैं सोचती हूँ मैं आज वॉक पे जाऊंगी, मैं आज सोचती हूँ मैं आज पानी ज्यादा पीऊंगी, मैं सोचती हूँ आज मैं ये करूंगी वो करूंगी, कुछ नहीं होता, कुछ मटेरियलाइज नहीं. लेकिन यही हमारी गलती है, हमें उसको मटेरियलाइज करना है. और वो कौन करेगा? हम ही तो करेंगे. हम एक्शन में नहीं आ रहे हैं, हम मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, और उसके पीछे साइंस है. वो अब मैं इतनी लंबी वीडियो बन जाएगी ना कि वो विचारधारा इतनी मेरी बहती जा रही है कि कहीं रिवर की तरह फ्लो होके फ्लड्स ही ना आ जाए. तो अभी फ्लड ना आए बेहतर है. मेरी विचारधारा बहुत ही ज्यादा हर जगह हर एंगल पे फ्लो कर रही है. तो अभी के लिए आप इतना सस्टेन कर लें, वही बहुत है. फिर वी हैव क्लोजिंग इनसाइट. द हिंदू सेक्रेड लैंडस्केप इज नॉट अ सिंगल बुक रिप्लेसिंग अनदर, but a continuous living dialogue where every new text reinterprets, preserves, and expands the ancient truth. So Hindu sacred landscape, ये landscape है एक तरह से, ठीक है. ये नहीं है कि एक बुक आ गई तो, ये ऐसे नहीं है कि एक नॉवल आ गई तो दूसरी नॉवल को भूल जाओ, दूसरी नॉवल आ गई तीसरी नॉवल को भूल जाओ. यू नो या you are watching one Netflix episode, another one comes, you forget the first one, another one comes, then you forget the second one, another one comes and you forget the fourth one. No, it's not like that. But it's a continuous living dialogue where every new text reinterprets, preserves, and expands the ancient truth. ब्रिज था हमारे पास जो कि है आर्यन आरण्यकास एंड उपनिषद्स, जो कि जो कि इंटरराइजिंग रिचुअल इनटू फिलोसॉफिकल सेल्फ डिस्कवरी. कैसे सेल्फ डिस्कवरी होती है. और कोर है वेदास, जैसे कि प्रोवाइड करते हैं फाउंडेशनल डिवाइन ट्रुथ, जैसे सेकंड जो कि है जैसे श्रुति, ठीक है. प्रोवाइडिंग द फाउंडेशनल डिवाइन ट्रुथ, ठीक है. So with this, I would like to end the session, and I would like to come to the end of the session. I hope you liked it. If you liked it, give it a thumbs up, and do like, share, and subscribe to my channel. Do like, share, and subscribe to Wisdom Era, where learning happens with your very own educator, teacher, philosopher, guide, mentor, preacher, guru, one and all. And this is the one-stop destination that is English Curricle Wisdom Era, the Odyssey of education, the edifice of education. Do like, share, and subscribe to my channel. Hit the notification bell icon so that you get notified whenever I upload any such informative, enlightening video with you, any such beautiful fabric, not fabricated, but yeah, beautifully woven
episode or let's say session, अध्याय, ठीक है। एक तरह से ये अध्याय हो गया है। और मैं अध्यापिका आपसे पूर्ण विराम लेती हूँ। सो या यहीं पे नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। All right, so this is your very own educators, Sukriti Joshi ma'am, signing off. Hit the bell icon so that you get notified whenever I upload any such informative and enlightening video. And press the all button, so that all videos reach out to you. Thank you.